And our top story amid bail hearings over the Delhi riots, RSS chief Mohan Bhagwat has issued a strong message against divisive politics, drawing a clear red line on slogans and narratives that threaten national unity. Now, addressing a gathering in memory of freedom fighter Veer Savarkar, Bhagwat said that India does not need the language of death and destruction, the spirit of living, building and uniting the nation. Listen in. यहाँ तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है, हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। So the message of unity coming in from the RSS chief in the memory of freedom fighter Veer Savarkar. I'm joined by my colleague Madhuparna Das on the broadcast. Madhuparna, so of course on brand for the RSS chief to make this unity pitch. At the same time, in the wake of the Madurai fiasco as well, where the DMK government has blocked so many devotees from going up the hilltop, he's also given the message of Hindu awakening. But for the RSS, a unity message and Hindu awakening is the same thing. See, Ayushman, you just see the timing of such speeches and the event. Let me first also tell our viewers, what was the whole event all about. So it happened in Andaman, and RSS chief Mohan Bhagwat and Union Home Minister Amit Shah both were present, and they were there to unveil VD Savarkar's statue, and that was also to mark the 116 years of celebration of Veer Savarkar's poem. It was a Marathi poem that he wrote when he was in England, and that was way before he actually joined the freedom struggle and then became the Hindutva ideologue. So this is also an attempt to revive Savarkar's legacy that the RSS has been doing for quite some time now, and this is one of the very prominent events that happened. Also, you see, it happened just days after the debate on Vande Mataram that happened in Parliament, and it also created a narrative. So this is kind of a very conscious and a very significant attempt to kind of revive the history and the legacy of all those Hindutva ideologue and the revolutionaries who spoke about unity, who spoke about Hindu Rashtra and things like that. So now, what he said that he actually mentioned the line "Tere tukde honge." This is of course not desirable, and they have spoken about it. But standing there, invoking Savarkar and saying it that Savarkar never thought that he was a Marathi, or he never considered that he belonged to a certain caste. So he saw himself and Indians as Hindustanis, that they always say. And by invoking Savarkar, saying that this is not at all desirable in a country like India, that we would be fighting over. Also, he mentioned small issues, chote issues ke upar algav baat. So he said that we fight over small issues, and then we speak these kind of language that tere tukde honge. So this is how can that happen? He also asked that in his speech, and every single thing that he said, it was somehow he tried to relate it to Savarkar's legacy. So this is the RSS and the BJP, they have always mentioned that they were very conscious attempt to hide or to conceal, to keep away some part of our history, our revolutionary history, our legacy. So they are now trying to bring that at the forefront, and this is also a part of their decolonization, their own decolonization program. That Madhuparna, yes.
Madhuparna, please Yes, stay Ashwin. with us because we're also joined by Vinod Bansal of the VHP on the broadcast. Bansal Saab, thank you for joining us on the broadcast here at CNN News 18. भागवत जी कहते हैं कि यूनिटी मैसेज जो आया था वीर सावरकर जी से, उसे हमें अपनाना चाहिए, देश भर अपनाना चाहिए, देश की यूनिटी के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी ऐसे वॉइसेस आते हैं जैसे लेफ्ट की तरफ से या राइट की तरफ से, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, पर वो कहते हैं कि जो भी नैरेटिव्स आते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं या माइनॉरिटीज़ को दूर रखने की बात करते हैं, उन्हें कंडेम करना चाहिए। ऑपोजिशन का ये एलिगेशन है कि काफ़ी ऐसे वॉइसेस संघ परिवार में भी है, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर संघ परिवार में आपको लगता है कि कोई काटने पीटने छाटने की बात करता है तो डेफिनेटली इट इज कंडेमनेबल, बट इट इज नेवर हैपन। वो संघ परिवार का व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो कि कोई मान लो किसी देश के विरुद्ध कोई बात करता हो। मैं सीधे सीधा कह रहा हूँ, देश विरोधी बात करने वाला तो देश विरोधी ही होगा, वो उसको देशद्रोही कह सकते हैं, कुछ और नहीं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये क्या है? अल्लाह के नाम पर टुकड़े करना चाहते हो आप, और वो भी भारत माता के, और उसी भारत में रह करके आप ऐसी बातें बोल रहे हो। लेके रहेंगे आजादी आजादी आजादी, क्या है? भारत से आजादी चाहिए तो चले जाओ ना आप। वीर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने, देखिए कि पूरा जीवन इतनी सारी काला पानी की सजा उन्होंने भुगती, और हमेशा पूरा जीवन उन्होंने झोंक दिया इस माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने कभी किसी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उसके बावजूद भी उनको ऊपर इस तरह के लालछन लगाने वाले लोग आज भी विद्यमान हैं। ये बड़ा दुखद है, और ये सारे के सारे लोग वो हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो हमेशा भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े होते हैं। जी विनोद बंसल साहब, आपके हिसाब से कि वीर सावरकर जी की इतनी निंदा होती है लेफ्ट की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, क्या उनकी निंदा इसलिए होती है क्योंकि वो हिंदू अवेकनिंग की बहुत ज्यादा बात करते थे? नहीं, हिंदू, नॉट ओनली हिंदू अवेकनिंग बट फॉर द नेशन अवेकनिंग ऑल्सो। वो आदमी, वो महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम किया, भारत के लिए बड़ा काम किया, भारत के लिए इतनी सारी सजाएं भुगती, अंग्रेजों को नाकोचने चबा दिए, और उसके बावजूद इतनी बड़ी कठोरतम सजा अंग्रेजों ने दी, जो कि मुझे भारत के इतिहास में किसी और का नाम बता दो जिसने इतनी लंबी और इतनी कठोर सजा किसने भुगती हो। सिर्फ और सिर्फ भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने सजा कोई हिंदुत्व के लिए नहीं भुगती कहीं भी। उनको कभी कोई भी सजा इस तरह की नहीं मिली जिससे कि उन्होंने हिंदुत्व की बात कही और इस वजह से उनको सजा मिली हो, नहीं। वो सजा तो अब ये देने वाले हैं जो हिंदुद्रोही तत्व हैं, जो भारत के विपक्ष के जो कुछ तथाकथित लीडर्स हैं, वो सब उनको इस तरह से एलिगेट करते हैं। बट वास्तव में उन्होंने जो सजाएं भुगती वो तो माँ भारत की स्वाधीनता के लिए भुगती ना जी। हमेशा से उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए काम किया। और आप देखिए कि आज की जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और उनका साथ देने वाले लोग कौन हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके पैरोकार कौन हैं, आखिरकार प्रकाश के दुश्मन कौन है? आज जो तमिलनाडु के अंदर दीपम वाला मामला चल रहा है, आप सोचिए कि वो प्रकाश के दुश्मन बने बैठे हैं जी। और जुडिशरी पर अटैक कौन करते हैं? आप देखिए, अगर कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हायर कोर्ट्स है ना हमारे पास, वहां जाइए ना जी, लेकिन वहां पक्ष नहीं रखना। कोर्ट को प्रेशराइज करके हमेशा से ऐसा ये लोग करते चले आ रहे हैं क्योंकि इनका सत्ता रही है। आज ये सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं कि किस तरह से जब इनकी पावर थी तो किस तरह से जुडिशरी को मैनेज करते थे, किस तरह से उन पर हमला करते थे। आज भी वही दबाव की प्रेशर प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। कोर्ट ने अगर डिसीजन इनके फेवर में नहीं दिया, अगर मान लो कहीं दाएं बाएं दे दिया, तो वो उनके अगेंस्ट में बोलेंगे, उनको ऊपर महाभियोग तक लगा देंगे। ये धमकी है सीधी सीधी। तो ये जो भारत विरोधी मानसिकता है, चाहे एंटी इंडिया स्लोगन्स की बात हो या एंटी इंडिया एक्ट की बात हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, या जो भारत के बाहर जाकर के भारत की छवि बर्बाद करने की बात हो, या जो भारतीय लोगों का अपमान करने वाली बात हो, भारतीय परंपराओं, उसकी जो गौरवशाली अतीत को झुठलाने की बात हो, या मैकाले की शिक्षा पद्धति को जो सपोर्ट करने की बात हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि वास्तव में स्वतंत्र वीर सावरकर के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत थी और भारत के विपरीत हैं जी। ऐसे लोगों का सपोर्ट करना ये भारत के विपक्ष का एक एजेंडा सा बन गया है जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद इसीलिए ये सब री-एक्सपोज हो रहे हैं और दे आर गोइंग टू दी डर्ट बेसिकली जी। अब वो इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा रहा है।
और वही स्टेटमेंट आ रहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से. विनोद बंसल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एंड गिविंग अस दैट पर्सपेक्टिव. वीर सावरकर once again invoked by the RSS chief to give the message of national unity.